Hello dear students, welcome in this second lecture on child health programs in India. आज हम बात करेंगे RMNCH program के बारे में. First of all, I will request all of you who have not yet subscribed, please subscribe my channel to keep in touch with me. तो आज हम बात करेंगे reproductive maternal newborn child and adolescent health program. तो RMNCH की हिस्ट्री की बात करें तो द रिप्रोडक्टिव वार्ड इन हेल्थ प्रोग्राम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड in RCH, Reproductive Child Health First Part 1 program, which was launched on 15th October 1997. It was a merger of two previously occurring programs, that was Family Welfare and Child Survival and Safe Motherhood program, and these both were merged into RCH first, that was launched in 1997. And the main aim of this RCH, that is Reproductive Child Health Program, was for achieving a status in which the women will be able to regulate their fertility. It was more a component of family welfare to regulate the fertility rate, and women will be able to go through their pregnancy and childbirth safely. That was a motto of Child Survival and Safe Motherhood program. And the outcome of the pregnancy will be successful and will lead to survival and well-being of the mother and child. Again, the CSSM, Child Survival and Safe Motherhood program. And the main objective was to reduce infant, child and maternal mortality. So infant mortality, under 5 child mortality and maternal mortality reduction was the main objectives of this particular program. This program was designated as RCH2, that is Reproductive Child Health Program 2, which was launched on 1st April 2005 as a component of this National Rural Health Mission. NRHM के component की तरह जो RCH2 launch हुआ, and there was some shift from the RCH1, and main objective of this RCH2 was to bring about a change in mainly 3 critical health indicators. 3 main health indicators को target किया गया. It was a reduced total fertility rate, a reduced infant mortality rate, and a reduced maternal mortality rate, with a view to realize the outcomes envisioned in the MDG, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में जो टारगेट्स रखे गए थे उनको अचीव करने के लिए जो प्रोग्राम में कुछ मॉडिफिकेशंस करी अंडर द हेडिंग ऑफ NRHM. Then this RCH2 becomes RMNCH plus A approach, which was launched in 2013, and it was a component of, or it is a component of National Health Mission. It was essentially launched to address basically the major causes of mortality among women and children. That was also previously was RCH part 2 में जो infant mortality, child mortality और maternal mortality को reduce करने की बात करी थी. तो वो क्यों जो है हम उसको नहीं कर पा रहे हैं, उन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए जो है क्या क्या मेजर कॉजेज हैं, उन सब को टारगेट करने के लिए जो इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया. इसलिए इसमें हर एक कंपोनेंट को अलग से नाम दिया गया, रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूनेटल, चाइल्ड एंड एडोलसेंट health. And the main goals were basically to reduce infant mortality rate to 25 or less than 25 per 1000 live births by 2017. 13 में लॉन्च हुआ था और 17 तक हमने टारगेट किया था कि 25 से नीचे हम इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट ले आए 1000 लाइव बर्थ पे. मैटरनल मोर्टिलिटी रेट रिड्यूस करनी थी 200 per 1000 live births by 2017, and total fertility rate was to be reduced to 2.1 by 2017. तो क्या टारगेट अचीव किए गए वो देख लेते हैं. तो अचीवमेंट वाज कि 2017 में जब सर्वे किए SRS में जो फाइंडिंग आई, तो उसमें इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट हमारे पास 33 रही,
जो कि नेशनल हेल्थ मिशन या RMNCH में टारगेट की थी 25 के आसपास रहनी चाहिए, तो वो टारगेट अचीव नहीं हो पाया। और MDG में जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था उसमें जो टारगेट की थी 2015 के लिए टारगेट था 28 हमने IMR लानी है, बट स्टिल in 2017 it was 33 and again target was revised to 28 in national health policy। 2019 तक जो है हमने 28 पे लानी थी। अभी का डाटा भी अवेलेबल नहीं है कि 19 में 20 में हम कितना नीचे ला पाए, बट इन 2017 इट वाज 33। न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट जो एक्चुअल स्टेटस था 2017 में इट वाज 23, while the target was under NHP it was 16 by the year of 2025। एंड अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट जो कि मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल में जो है 2015 में लेस देन 38 का रखा था, तो 2017 के सर्वे में वो 37 आया है, और इसका टारगेट NHP में रखा गया है 23 बाय द ईयर 2025। these are some major causes of infant mortality। जब हम infant mortality रेट कम करने की बात करते हैं तो हमको पता भी होना चाहिए कि infant mortality किस कारण से, एंड मेजर कॉजेज आर न्यूनेटल मॉर्टेलिटी जो होती है, जो प्रीमेच्योरिटी एंड लो बर्थ वेट के कारण होती है। उसके बाद डेथ होती है वो निमोनिया और डायरिया के कारण ज़्यादा होती है, डायरियल डिजीजेस हैं। एंड देन न्यूनेटल मॉर्टेलिटी में जो है बर्थ एस्फिक्सिया और बर्थ ट्रॉमा भी एक बड़ा कॉज रहता है, 10% ऑफ द डेथ। तो इनको टारगेट करने के लिए आगे स्ट्रेटजी बनी RMNCH में कि कहाँ कहाँ हमने टारगेट करना है। जैसे निमोनिया डायरियल डिजीज के लिए IMNCI जो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस है, उसमें इसको टारगेट किया गया। बर्थ एस्फिक्सिया, बर्थ ट्रॉमा या उसको टारगेट करने के लिए जो है नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम चलाया गया। प्रीमेच्योरिटी और लो बर्थ वेट के लिए जो है मैटरनल हेल्थ पे, एंटीनेटल केयर पे चीज़ें दी गई। बाकी कंजेनाइटल एनॉमलीज वगैरह की अर्ली डिटेक्शन के लिए स्पेसिफिक जो है सर्वे या प्रोग्राम चलाया गया, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसमें कि कंजेनाइटल एनॉमलीज को डिटेक्ट करना भी एक जो है वो रहता है। तो इस तरीके से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए उनको क्या मतलब कहाँ पे हमको टारगेट करना है, उसके लिए चीज़ें जाननी है। तो वही चीज़ इसमें भी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में जो है प्रीमेच्योरिटी LBW सबसे बड़ा पार्ट है, देन निमोनिया 17%, देन डायरियल डिजीज़ है 9%, अदर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, कंजेनाइटल एनॉमलीज हैं, बर्थ एस्फिक्सिया एंड ट्रॉमा है। तो उनको एड्रेस करने के लिए स्ट्रेटजीज बनाई गई। तो अब RMNCH की बात करें तो RMNCH बेसिकली द प्रोग्राम फोकसेस ऑन द कंटिन्यूम ऑफ द केयर अक्रॉस वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ। अलग अलग स्टेजेस जो लाइफ की हैं उसमें आप हेल्थ को जो मेंटेन रखे, कंटिन्यू रखे, तो चाहे वो रिप्रोडक्टिव एज है, मैटरनल टाइम है, या लैक्टेटिंग वुमेन है, न्यूबॉर्न्स हैं, चाइल्डहुड पीरियड है, एडोलसेंस है। तो अलग अलग एज ग्रुप्स में हमको जो है हेल्थ को मेंटेन करना है एट डिफरेंट लेवल ऑफ हेल्थ केयर। लेवल ऑफ हेल्थ केयर, हर एक लेवल ऑफ हेल्थ केयर इसको इसमें इन्वॉल्व किया कि होम बेस्ड केयर के लिए आशा का कंसेप्ट है, देन प्राइमरी हेल्थ केयर, OPD IPD बेस्ड मैनेजमेंट, फिर सेकेंडरी एंड टर्सरी केयर, हर एक चीज़ को इंटीग्रेट किया गया RMNCH में। तो कंपोनेंट्स बात हो गई कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एंटीनेटल केयर, प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ केयर, पोस्टनेटल केयर, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड केयर एंड एडोलसेंट हेल्थ केयर। तो इसमें हम जो RMNCH के कंपोनेंट्स पीडियाट्रिक एज ग्रुप से रिलेटेड हैं उन्हीं की हम बात करेंगे, न्यूबॉर्न, चाइल्ड एंड एडोलसेंट की बात करेंगे। तो दिस इज 5x5 मैट्रिक्स ऑफ RMNCH, 5 कंपोनेंट्स एंड 5 की स्ट्रेटजीज हैं। तो 5 कंपोनेंट्स जो हैं RMNC एंड A हैं, जिसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ में 5 मेन स्ट्रेटजीज हैं कि कैसे उस रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम प्रमोट करें, रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल्स में हेल्थ कैसे प्रमोट करें, मैटरनल हेल्थ को कैसे हम प्रमोट करें, देन न्यूबॉर्न। इन 3 कंपोनेंट्स की हम बात कर सकते हैं, न्यूबॉर्न, चाइल्ड हेल्थ एंड एडोलसेंट। तो न्यूबॉर्न्स में जो है हेल्थ मेंटेन करने के लिए प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज़ और मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज़ के लिए कैसे जो है उसमें 5 की पॉइंट्स दिए कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, अर्ली इनिशिएशन एंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है, होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर थ्रू आशा है,
एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर एंड रिससिटेटिव सर्विसेज एट ऑल डिलीवरी पॉइंट्स है। देन स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट्स बनानी एंड हाईली ट्रेंड जो ह्यूमन रिसोर्स है एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर है। एंड एम्पावर ANM फॉर कम्युनिटी लेवल यूज ऑफ जेंटामाइसिन, और वो IMNCI इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेस की तरफ बात कर रहा है, न्यूनेटल की बात कर रहा है। तो देन चाइल्ड हेल्थ के लिए उन्होंने मेनली सबसे पहले न्यूट्रिशन की बात करी है कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कि न्यूट्रिशनल स्टेटस उसका अच्छा रहे तो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन एंड फोकस ऑन न्यूट्रिशन है। देन उसके बाद जो है जो दो बड़े किलर हैं अंडर 5 चिल्ड्रन में, डायरिया निमोनिया, उसकी मैनेजमेंट थ्रू जिंक ORS और मैनेजमेंट ऑफ निमोनिया। देन full immunization coverage to prevent vaccine preventable diseases, and then RBSK for screening of children for 4 days, defects, developmental delays, deficiencies and diseases and their management। तो ये 5 strategies basically child health के लिए RMNCH में हैं। और इसी तरीके से एडोलसेंट के लिए जो है 5 बेसिक स्ट्रेटजीज हैं कि कैसे जो एडोलसेंट हेल्थ को हम प्रमोट करें, प्रिवेंट करें उसमें इलनेसेस को। तो उसमें 5 स्ट्रेटजीज जो है पीयर एजुकेशन या पीयर एजुकेटर के थ्रू जो है वो करना है। डिले एज ऑफ मैरिज है, आश क्लिनिक है, जो प्रीवियसली जो एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम चल रहा था वो एडोलसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ की क्लिनिक्स होते थे, वीकली IFS सप्लीमेंटेशन है या मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रमोट करना है। तो ये 5 मैट्रिक्स पॉइंट्स हैं, 5 की स्ट्रेटजीज हैं एडोलसेंट हेल्थ के लिए। तो एक एक की बात करेंगे कि उसमें और भी फर्दर क्या क्या डिटेल्ड प्रोग्राम चल रहे हैं RMNCH के तहत। तो न्यूबॉर्न हेल्थ केयर की बात करें तो न्यूबॉर्न हेल्थ केयर में होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर के लिए जो है क्या स्ट्रेटजी अपनाई गई है कि की केयर प्रोवाइडर उसमें आशा है, आशा की ट्रेनिंग कराएं। आशा कैसे जो है न्यूबॉर्न की केयर करेगी थ्रू होम विजिट्स, एंड होम विजिट्स में क्या करेगी, क्या किस चीज़ की केयर करेगी, वो देखेगी कि वार्मथ और टेम्परेचर मेंटेनेंस हो रहा है। अर्ली इनिशिएशन एंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, जो हम पहले मैट्रिक्स में बात कर रहे थे कि क्या स्ट्रेटजी रहेगी न्यूबॉर्न हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। और स्किन, आई और कॉर्ड केयर टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस और अर्ली डिटेक्शन ऑफ सेप्सिस एंड अदर इलनेसेस। एक आशा जाएगी घर घर में न्यूबॉर्न के, और इन चीज़ों के लिए उसको स्क्रीन करेगी या स्पेसिफिक जो प्रिवेंटिव पॉइंट्स हैं जैसे ब्रेस्ट फीडिंग या टेम्परेचर मेंटेनेंस है उनको बताएगी, मदर को बताएगी। Then there is facility-based newborn care that is under IMNCI, that is integrated management of neonatal and childhood illnesses, and in facility providing appropriate skills for IPD management of major causes of neonatal mortality rate or child mortality like asphyxia, sepsis, LBW, pneumonia टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो इस पर्टिकुलर IMNCI में हेल्थ केयर प्रोवाइडर की ट्रेनिंग कराई जाएगी, स्पेसिफिक जो कॉजेज हैं NMR को, उनको डिटेक्ट करने के, उनको ट्रीट करने के लिए। एंड सेटिंग अप ऑफ द फैसिलिटीज फॉर केयर ऑफ सिक न्यूबॉर्न्स लाइक SNCU या न्यूबॉर्न स्पेशल केयर यूनिट, NBCCs एट डिफरेंट लेवल ऑफ हेल्थ केयर। तो इस तरीके से न्यूबॉर्न केयर के कुछ स्ट्रेटजीज बनाई। एक कार्यक्रम रिसेंटली लॉन्च हुआ है, दैट वाज नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, 2013 में शायद ये लॉन्च हुआ था, इसी में RMNCH के अंडर ही। तो उसमें मेन ऑब्जेक्टिव इज टू हैव ट्रेन्ड हेल्थ पर्सनल इन बेसिक न्यूबॉर्न केयर एंड रिससिटेशन एट एवरी डिलीवरी पॉइंट। तो इसमें क्या किया गया कि हेल्थ पर्सन को ट्रेन किया गया कि इसमें बेसिक न्यूबॉर्न केयर और रिससिटेशन में ट्रेन किया गया हर डिलीवरी पॉइंट पे, चाहे डिलीवरी वैसे तो प्रमोट किया गया कि एवरी डिलीवरी शुड बी एट हेल्थ सेंटर। तो हेल्थ सेंटर पे चाहे वो PHC है, चाहे CHC है या कहीं भी है, वहाँ पे हर एक पर्सनल, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ है या डॉक्टर्स हैं, उनको स्पेसिफिकली जो है रिससिटेटिव केयर और बेसिक न्यूबॉर्न केयर के लिए इस पर्टिकुलर कार्यक्रम जो नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है, इसके अंडर ट्रेनिंग दी गई, ट्रेन किया गया। एंड इक्विपिंग हेल्थ केयर प्रोवाइडर विद नॉलेज एंड स्किल्स। बेसिकली जो है रिससिटेशन हम जानते हैं कि इट्स अ स्किल बेस्ड प्रोग्राम, तो स्किल्स सिखाई जाती है उसमें, जैसे इसमें दिखाया भी है कि नवजात शिशु
कार्यक्रम में बेसिकली उनको रिससिटेशन की स्किल्स जो हैं सिखाई जा रही हैं। देन ट्रेनिंग रिगार्डिंग केयर एट बर्थ, आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कॉमन कॉम्प्लिकेशन एंड स्टेबलाइजिंग एंड रेफरल। अगर प्राइमरी लेवल पे कोई प्रॉब्लम हो रही है जहाँ न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है तो वहाँ पे कैसे उस कॉम्प्लिकेशन को मैनेज करके स्टेबलाइज करके हमने रेफर करना है, वो भी उसमें सिखाया जाता है नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम में। Then there is INAP, that is Indian Newborn Action Plan, which was developed in response to global INAP Every Newborn Action Plan by WHO in 2014. तो इंडिया का जो प्रोग्राम INAP है वो INAP के रिस्पॉन्स में है, and the goal of this INAP, that is Indian Newborn Action Plan, is single digit newborn this neonatal mortality rate by 2030 and single digit stillbirth rate by 2030. So these were some key strategies or programs related to neonatal health. Then child health care में क्या-क्या जो programs हैं इंडिया में क्या-क्या run हो रहे हैं for the prevention of the illnesses in children or treatment of the illnesses in the children. तो इसमें न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स हैं, जैसे न्यूट्रिशनल प्रोग्राम में ICDS हमने बात करी फर्स्ट लेक्चर में, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज जो स्कीम है। देन अदर है उसमें मिड डे मील है या हाँ और भी न्यूट्रिशनल रिलेटेड प्रोग्राम है, आयरन प्लस इनिशिएटिव है, इस तरीके के, या विटामिन ए सप्लीमेंटेशन है, इस तरीके के प्रोग्राम न्यूट्रिशन प्रोग्राम है चाइल्ड हेल्थ प्रमोट करने के लिए। देन RBSK है जिसमें बेसिकली जो है स्क्रीनिंग के लिए है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। देन स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, प्रीवियसली इट वाज स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, नाउ दे आर अ पार्ट ऑफ RBSK। देन IMNCI है, बार बार इसकी डिस्कशन हो रही है कि कैसे इसकी डेवलपमेंट हुई, कैसे जो है WHO यूनिसेफ ने IMCI चलाया, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेसेस, 1980s 1990s में जो है एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल लिया और इंडिया में वो IMNCI बना, तो वो एक चाइल्ड हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम है। देन नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर चिल्ड्रन जो NPAC है, ये एक्शन प्लान है चिल्ड्रन के लिए। एक एक की बात करें, बेसिकली न्यूट्रिशनल प्रोग्राम की बात करें तो वाई देर आर नीड ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स। तो न्यूट्रिशनल प्रोग्राम की नीड इसलिए है कि नियरली 36% ऑफ द चिल्ड्रन अंडर 5 आर अंडर वेट। तो इंडिया का डाटा 2015-16 का है, 15-16 का डाटा है जिसमें अंडर वेट जो है 36%, मोर देन 1/3 ऑफ द चिल्ड्रन आर अंडर वेट इन इंडिया। 1/5 आर वेस्टेड, 21% जो है वेस्टेड हैं, एंड नियरली 38% आर स्टंटेड, जो कि बहुत बड़ा फैक्टर है। एंड देन नियरली 53% ऑफ द वुमेन इन रिप्रोडक्टिव एज, 59% ऑफ द चिल्ड्रन दैट इज लेट इन्फेंसी टू अंडर 5 चिल्ड्रन जो हैं, एंड 50% ऑफ द प्रेग्नेंट वुमन आर एनीमिक। बहुत ज़्यादा जो है, मोर देन 50 है हर एक में, कि एनीमिया इतना प्रिविलेंट है इन एज ग्रुप्स में। तो इसलिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, न्यूट्रिशनल प्रोग्राम रन करने की ज़रूरत है। सबसे पहले जो ICDS लॉन्च हुआ था, हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी 1970s में, तो उसका काम यही था कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन टू 0 to 6 ईयर्स चिल्ड्रन, जिसमें अब जो है बाकी चीज़ें भी एड ऑन हो गई है, मैटरनल न्यूट्रिशन या प्रेगनेंसी में एंटीनेटल केयर और ये सारी चीज़ें हैं। बट यहाँ न्यूट्रिशन की बात करें तो ICDS was first and foremost program to maintain the nutrition in these children under 5 or under 6 children. Then after school, these children are preschool children. Then school going children और adolescents के लिए जो मिड डे मील प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। मिड डे मील मध्याह्न भोजन योजना जो है उसको बेसिकली प्रोटीन और एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। देन न्यूट्रिशन टू स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, जैसे कुछ आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन है। इम्प्रूवमेंट ऑफ एंड बेसिकली दीज प्रोग्राम्स क्या है, किस लिए लॉन्च हुए, मिड डे मील जैसे है। तो मिड डे मील बेसिकली जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को, और मिड डे मील से क्या होगा कि न्यूट्रिशन के साथ साथ ही इम्प्रूवमेंट इन एनरोलमेंट, जैसे सर्व शिक्षा अभियान आया है कि एवरी चाइल्ड शुड बी एजुकेटेड, एंड देन अटेंडेंस जो है इससे इम्प्रूव होगा, जैसे
मील मिलेगा तो बच्चे जो है स्कूल में ज़्यादा आएंगे। देन नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव है, एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम के अंडर जो है इंटेंसिफाइड नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव चल रहा है। दिस इज एनीमिया मुक्त भारत 2018 का है, तो इसमें इंटेंसिफाइड नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव, जिसमें पर्टिकुलर डेज में आयरन सप्लीमेंट किया जाता है। तो ज़्यादा डीप नहीं जा रहे हैं हम न्यूट्रिशनल प्रोग्राम में, कुछ नाम बताया उनकी की स्ट्रेटजीज क्या क्या है उसमें। देन आरबीएसके की बात करें तो आरबीएसके दिस इज आल्सो नोन एज चाइल्ड हेल्थ स्क्रीनिंग एंड अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज। तो पहले जो है इस तरीके से चलता था प्रोग्राम, चाइल्ड हेल्थ स्क्रीनिंग एंड अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज, और आरबीएसके राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, क्योंकि बचपन है अनमोल। तो दिस पर्टिकुलर आरबीएसके क्या एम करता है? इट इज एम्ड एट अर्ली डिटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ सेट ऑफ 30 हेल्थ कंडीशंस। 4D है, 4D प्रिंसिपल आता है इसमें, जिसमें कि 30 हेल्थ कंडीशंस आइडेंटिफाइड हैं अंडर 18 चिल्ड्रन में जो है, जो प्रिविलेंट रहती हैं, उनको डिटेक्ट करना है और उनके अर्ली मैनेजमेंट हो। एंड दीज कंडीशंस आर ब्रॉडली द डिफेक्ट्स। 4D क्या है? डिफेक्ट्स एट बर्थ, मतलब congenital diseases in children, common childhood illnesses which may cause death, disability, etc. Then deficiency conditions, nutritional deficiencies और developmental delay। तो 4D जो है इसमें आते हैं। Through how this is implemented, this particular RBSK is implemented through mobile health teams। mobile health teams जो हैं constitute की जाती हैं, और जिसमें कि 2 doctors, 1 आयुष doctor and 1 MBBS doctor, and 2 paramedics who are adequately trained and provided necessary tools for screening. And this program is such a large program that around 27 crore children are to be screened annually। तो 27 करोड़ बच्चों को जो एनुअली स्क्रीन किया जाता है इस प्रोग्राम में। तो इसमें देखें तो ये सारी डिजीज हैं, जैसे डिफेक्ट्स में 9 डिफेक्ट्स की बात की है, 9 डिफेक्ट्स टारगेट किए हैं। एनटीडीज हैं, डाउन सिंड्रोम है, क्लेफ्ट लिप पैलेट है, सीटीवी है, डीडीएच है, कंजेनिटल कैटरेक्ट है, डेफनेस है, सीएचडीज हैं, कंजेनिटल हार्ट डिजीज, बीएचडी, एसडी वगैरह। देन आरओपी है, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी है। डेफिशिएंसीज जो है 5 डेफिशिएंसीज को टारगेट किया है। एनीमिया है, विटामिन ए, विटामिन डी डेफिशिएंसी, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन और स्टंटिंग एंड गोइटर। चाइल्डहुड डिजीजेस हैं, 6 चाइल्डहुड डिजीज को बेसिकली इसमें टारगेट किया जाता है। स्किन कंडीशंस हैं, ओटाइटिस मीडिया है, आरएसडीज हैं, रोमेटिक हार्ट डिजीज, देन रिएक्टिव एयर बेस्ड डिजीज लाइक एस्थमा वगैरह हैं, देन डेंटल कैरीज हैं, एंड कन्वल्सिव डिसऑर्डर, एपिलेप्सी वगैरह है। देन डेवलपमेंटल डिलेज एंड डिसेबिलिटी, जो रिमेनिंग 10 हैं, वो जो है डेवलपमेंटल डिले एंड डिसेबिलिटी है, जिसमें विजन है, हियरिंग की प्रॉब्लम्स है, न्यूरोमोटर इम्पेयरमेंट्स हैं, मोटर डिलेज हैं, कॉग्निटिव डिले, आईक्यू जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिनको बोल सकते हैं हम, लैंग्वेज डिले है, बिहेवियरल डिसऑर्डर, मेनली ऑटिज्म जो है इसमें लिया गया है। देन लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, लर्निंग डिसऑर्डर्स हैं, एडीएचडी है, एंड अदर्स जो अदर डेवलपमेंटल डिले हैं। तो ये बहुत बड़ा पार्ट है इसका राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का। School health programs, तो school health programs now they are under RBSK. Basically, WHO launched a global school health initiative in 1995 with the goal to increase number of health promoting schools. Government of India launched school health programs in 1996-97। WHO के रिस्पॉन्स में ही हर कोई हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च होता है। इट मेनली फोकसेस ऑन सम स्क्रीनिंग टेस्ट, कुछ पर्टिकुलर स्क्रीनिंग, जैसे आरबीएसके में अब टारगेट किया है, वैसे कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट तक ही लिमिटेड था। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम वर अगेन स्ट्रेंथन्ड इन एनआरएचएम इन 2005। नाउ दे आर सबज्यूम्ड अंडर आरबीएसके। देन आईएमएनसीआई की बात करें, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेसेस। This is the strategy with both preventive as well as curative intervention that are aimed to improve case management practices in health facility, health system and at home। कि बेसिकली पहले जो है अपने अपने उस पे
डायग्नोसिस पे चलते हैं कि ये पर्टिकुलर निमोनिया है, मैंने इस एंटीबायोटिक से इस तरीके से ट्रीट करना था, बट उसको एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी बना ली, सिंड्रोमिक स्ट्रेटजी की, उसके अंदर बच्चों में बहुत सारे डिजीज में भी मिमिक ईच अदर, तो इसलिए एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी बना दी कि इस तरीके के सिम्टम्स आएंगे तो इस तरीके से हमने ट्रीट करने हैं, उस स्ट्रेटजी को IMNCI दिया गया, नाम दिया गया. IMNCI primarily cater to under 5 children in outpatient settings in PSC or OPD of the hospital. A holistic approach to common neonatal and childhood illnesses like acute respiratory infections, diarrhea, measles, malaria and malnutrition. Basically 5 चीजें जो है इसमें IMNCI में इंक्लूडेड थी, बाद में और चीजें जो है ऐड ऑन हो गई. रेशनल क्या है, क्यों जो है हम इस तरीके से अप्रोच लेते हैं. बेसिकली NMR जो है कंट्रीब्यूट 2/3 ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. तो न्यूनेट्स को इंडिया में क्यों इंक्लूड किया गया IMNCI में, क्योंकि 2/3 ऑफ द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज कॉज्ड बाय NMR, neonatal mortality rate. Then young infant and child suffers more than one illnesses at a time. एंड कॉमन इलनेसेस हैव सिमिलर प्रेजेंटिंग सिम्टम्स. जो हम बोल रहे हैं कि एक जैसे जो है दिखती हैं चीज़ें. दैट्स वाई अ सिंड्रोमिक अप्रोच और होलिस्टिक अप्रोच और इंटीग्रेटेड अप्रोच वाज इज बेटर वे टू डिटेक्ट एंड ट्रीट प्रॉम्प्टली दीज लाइफ थ्रेटनिंग इलनेसेस. बेसिकली 2 ग्रुप्स में IMNCI में जो आगे हम चार्ट भी देखेंगे कि उसमें 2 ग्रुप में जो है डिवाइड करते हैं एज वाइज अप टू 2 months ऑफ द एज एंड 2 months टू 5 year ऑफ द एज में जो है 2 ग्रुप्स में IMNCI की स्ट्रेटजीज चलती हैं. तो इसमें गाइडलाइंस और वर्क प्लान कैसे है इसका, कि द गाइडलाइंस रिप्रेजेंट एन एविडेंस बेस्ड, कि एविडेंस बेस्ड है जो भी हम कर रहे हैं, एंड सिंड्रोमिक अप्रोच की पर्टिकुलरली हम एक डिजीज नहीं ले रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर सिम्टम कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं जिसको हम सिंड्रोम बोलते हैं. सिंड्रोमिक अप्रोच जो है केस मैनेजमेंट के लिए हम इसमें लेते हैं. दैट इंक्लूड्स रैशनल, इफेक्टिव एंड अफोर्डेबल यूज ऑफ ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक टूल्स. तो केस मैनेजमेंट प्रोसेस फॉलो अ रेशनल सीक्वेंस विच क्या होता है इसमें, कैसे हम केस मैनेजमेंट करते हैं. फर्स्ट वी असेस, देन वी क्लासीफाई किस कैटेगरी में आ रहा है, अलग अलग कलर कोडिंग है उसमें, वो आगे हम चार्ट में डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन कैसे होगी. देन आइडेंटिफाई द ट्रीटमेंट, कि उस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन में क्या ट्रीटमेंट की जाती है. ट्रीट द इन्फेंट की पहले आइडेंटिफिकेशन करनी है हमने, कौन सी ट्रीटमेंट चलेगी. देन इन्फेंट को ट्रीट करना है, मदर को काउंसिल करना है, और काउंसलिंग के बाद जो है घर चली जाएगी मदर दवाई लेके, एंड देन फॉलो अप केयर के लिए उसको बुलाना है, कब बुलाना है. इट आल्सो हेल्प टू आइडेंटिफाई सिक इन्फेंट्स चाइल्ड विद नीड्स टू रेफरल. तो यहाँ पे जब हम क्लासीफाई और करते हैं, अगर हमको लगता है कि रेफरल की नीड है, अलग कलर कोड में जा रहा है, तो उसमें हमको इनिशियल जो प्री रेफरल ट्रीटमेंट देके हमने उसको रेफर करना है. तो दिस इज बेसिकली IMNCI केस मैनेजमेंट प्रोसेस. तो इसमें फॉर ऑल द सिक चिल्ड्रन अप टू 5 years who are brought to फर्स्ट लेवल हेल्थ केयर फैसिलिटी, की प्राइमरी PHC पे क्या IMNCI केस मैनेजमेंट प्रोसेस होती है वो दिखाया गया इस चार्ट में, कि एज अप्रोप्रिएट चार्ट सेलेक्ट करो कि हाँ भाई 2 months to 5 years है तो इनको हमने फॉलो करना है. 2 months से नीचे बच्चा है तो ये है. तो 2 months से नीचे आया है तो सबसे पहले चेक करना है हर एक बच्चे को कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है 2 months वाले से नीचे को, या जॉन्डिस तो नहीं है. और बड़ों में कि कन्वर्जन्स जो हमने बात करी थी पहले, लिथार्जी, अनकॉन्शियसनेस तो नहीं है, इनएबिलिटी टू ड्रिंक और ब्रेस्ट फीड है, वॉमिटिंग. तो ये डायरिया को वो कर रहा है और ऊपर जो है निमोनिया को देखना चाह रहा है. देन हिस्ट्री लेनी है, आस्क द मेजर सिम्टम्स, कि यहाँ कफ या डिफिकल्ट ब्रीदिंग है, डायरिया है, फीवर है, या ईयर प्रॉब्लम है. यहाँ पे मेनली लेस देन 2 months में डायरिया पूछना है. देन एग्जामिनेशन करनी है. एग्जामिनेशन बड़े बच्चों में मालन्यूट्रिशन के लिए, एनीमिया के लिए, इम्यूनाइजेशन के लिए उसका कार्ड से होगा कि कार्ड जो लाएंगे वो इम्यूनाइजेशन कौन कौन सी हुई है, कौन कौन सी नहीं हुई है. देन प्रोफाइलेक्टिक स्टेटस देखना है, विटामिन ए दी गई है, नहीं दी है, आयरन फॉलिक एसिड दिया है, नहीं दिया है. जबकि छोटे बच्चों में मेनली देखना है कि फीडिंग प्रॉब्लम तो नहीं है, या माल न्यूट्रिशन में तो नहीं जा रहा बच्चा, एंड इम्यूनाइजेशन स्टेटस उसका 2 months तक के बच्चे का चेक करना है, और बाकी अदर प्रॉब्लम्स को असेस करना है फिर. एंड देन क्लासीफाई द इलनेस एंड आइडेंटिफाई ट्रीटमेंट यूज कलर कोडेड ट्रीटमेंट चार्ट. तो अगर पिंक में आ रहा है तो हमने अर्जेंट रेफरल करना है आफ्टर प्री रेफरल ट्रीटमेंट्स, और पेशेंट को गाइड करके ये जो भी बच्चा है उसको हमने रेफर करना है.
और रेफर में जो इमरजेंसी ट्रायल्स एंड ट्रीटमेंट डायग्नोसिस ट्रीटमेंट है वो आगे की बात है। देन येलो में हमको जो है ट्रीटमेंट एट आउट पेशेंट हेल्थ फैसिलिटी, पिंक वाले में अर्जेंट रेफरल है। अलग अलग कैटेगरीज में जब जाएगा बच्चा तो उसके लिए अलग से गाइडलाइन रहेगी। तो येलो वाले में आ रहा है देन वी हैव टू ट्रीट एज ए ओपीडी पेशेंट, और उसमें हमने लोकल इन्फेक्शन है, ओरल ड्रग्स देनी है, तो उसको जो केयर टेकर है उसको एडवाइस करना है, उसको काउंसिल करना है और फॉलोअप के लिए बताना है। और ग्रीन है तो मतलब होम मैनेजमेंट करनी है हमने, तो उसमें जो है ओरल ड्रग्स है, ट्रीटमेंट वही है कंटिन्यू, ब्रेस्ट फीडिंग है, कीप यंग इन्फेंट बाम जो छोटे बच्चों में न्यू बॉर्न्स में या न्यूनेट्स में चीज़ें हैं, एंड रिटर्न इमीडिएटली, डेंजर साइन एक्सप्लेन करने की कुछ होता है तो आपने दिखाना है, और फॉलोअप में फिर से असेस करना है उसको कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इस तरीके से एक जो IMNC गाइडलाइन होती है, इंटीग्रेटेड अप्रोच होती है मैनेजमेंट की बच्चों में। लास्ट जो हमारे पास स्फीयर है, तो हमने न्यूबॉर्न या न्यूनेटल हेल्थ की बात करी, जिसमें शिशु सुरक्षा योजना की बात करी। देन चाइल्ड हेल्थ में बहुत सारी चीज़ें आई, न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स हैं, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम है। इम्यूनाइजेशन हम बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि इम्यूनाइजेशन थर्ड लेक्चर में बात करेंगे। देन थर्ड पार्ट जो हमारे पास है वो एडोलसेंट हेल्थ का है। प्रीवियसली जो प्रोग्राम चलता था वो चलता था एडोलसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ स्ट्रेटजी, जिसको अर्श करके जो है बोला जाता था, ARSHS, अर्शस जो चलता था बेसिकली। उसमें 33% ऑफ द डिजीज बर्डन एंड ऑलमोस्ट 60% ऑफ द प्रीमैच्योर डेथ अमंग एडल्ट्स कैन बी एसोसिएटेड विद बिहेवियर एंड कंडीशन दैट स्टार्ट्स इन एडोलसेंट। तो एडोलसेंट की वैल्यू बता रहा है कि 33% of the disease burden in adults are caused by some behaviors or conditions which starts by the age of adolescence, and 60% of the premature, अगर adults prematurely die कर रहे हैं तो उसमें 60% का cause जो है adolescent के behavior होंगे, कि उस टाइम जो उन्होंने behave शुरू किए, हेल्थ लाइफस्टाइल लिए या मिसयूज किया, सब्सटेंस यूज किया, उस तरीके से जो है वो प्रीमेच्योर उनकी डेथ हो सकती है, कैंसर और ये सारी चीज़ें हैं। तो उस डाटा को बता रहा है कि 60% ऑफ द, अगर एडल्ट में प्रीमेच्योरली एडल्ट मर रहे हैं तो उसका कॉज है एडोलसेंट में जो है उसकी प्रॉब्लम है। स्टार्ट वो एडोलसेंट से ही होती हैं, चाहे वो एबनॉर्मल बिहेवियर्स हैं, जो 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 हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट नहीं करना, वो सारी चीज़ें हैं। Then substance abuse, or like smoking, tobacco, alcohol, poor eating habits, and sexual abuse, risky sex. They are problems of adolescents. In age group 10 to 14, injuries and communicable diseases are common causes of disability and death. 10 से 14 साल के बच्चों में जो प्रॉब्लम मेनली अगर डिसेबिलिटी या डेथ हो रही है तो उसके पीछे कारण है इन्फेक्शंस हैं या फिर इंजरीज हैं। वाइल थोड़े बड़े एडोलसेंट्स हैं, 15 से 19 साल, 15 to 19 ईयर्स वाले हैं, in them the sexual behaviors and mental health are main problems. तो either unsafe sex है या इस तरीके की चीज़ें हैं। देन मेंटल हेल्थ, जो सुसाइड की टेंडेंसी ऐसे बच्चों में ज़्यादा रहती है, तो उन चीज़ों को टारगेट करके एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम चलाया जाता है। एडोलसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ स्ट्रेटजी अर्श was launched in 2005. The priority intervention in adolescent health जो है क्या क्या है, it is nutrition, iron, folic acid supplementation, then adolescent health clinic या ARSH clinic जिनको बोला जाता है, बेसिकली फैसिलिटी बेस्ड रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल बिहेवियर्स को के रिलेटेड काउंसलिंग के लिए जो है ARSH clinic होते हैं। देन इंफॉर्मेशन एंड काउंसलिंग ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव अदर हेल्थ इश्यूज की बात करी। मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात की जाती है एडोलसेंट हेल्थ में, प्रायोरिटी इंटरवेंशन एरिया मेंस्ट्रुअल हाइजीन है। एंड प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स, चाहे वो स्कूल हेल्थ चेकअप्स हैं या क्लिनिक बेस्ड हेल्थ चेकअप्स हैं। तो उसके बाद जो है 2014 में आश के ऊपर एक और प्रोग्राम लॉन्च हुआ जिसको कि RKSK बोलते हैं, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड ऑन 7 जनवरी 2014 टू रीच आउट to 53 million adolescents. In this program there was a paradigm shift from clinic based approach to reaching adolescents in their
इन्वायरमेंट, उनके इन्वायरमेंट में जाके फॉर प्रिवेंशन एंड प्रमोशन ऑफ द हेल्थ, उनके इन्वायरमेंट में जाके जो है इंटरवेंशन प्लान किया गया। Expansion from previous limited approach of sexual and reproductive health to more extensive approach including nutrition, injury and violence, mental health, non-communicable diseases and substance abuse। तो इन चीज़ों को भी की स्ट्रेटजीज को इन्वॉल्व किया गया। जैसे आर्ट्स में जो है मेनली रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ, एडोलसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ ARSH स्ट्रेटजी थी। लेटर ऑन जो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम लॉन्च हुआ 2014 में, उसमें इन स्ट्रेटजीज को भी अडॉप्ट किया गया कि उसमें न्यूट्रिशन, इंजरीज और वायलेंस के प्रति जो उनको सेंसिटाइज करना है, मेंटल हेल्थ, उनकी काउंसलिंग, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए उनको लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना या हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना, और कैसे उनको सब्सटेंस अब्यूज से बचाना है। तो दीज आर बेसिकल RKS के ऑब्जेक्टिव्स इन विच adolescents are taught or they are sensitized about healthy lifestyle. To adopt healthy lifestyle, they are being counseled to adopt a mental and emotional well-being, and to prevent violence-free livings, and to prevent substance misuse, sexual and reproductive health component जो पहले चल रहा था वो भी इसमें साथ में रहेगा, and टू इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस। तो ये RKS के कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको कि जो है RKS के अंडर टारगेट किया गया है। So this is all about RMNCH plus A. It is very brief about RMNCH plus A because it includes so many programs. It is basically सिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम, और इसके अंतर्गत बहुत सारे, जैसे NRHM या NHM के अंतर्गत बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते हैं, वैसे ही RMNCH के अंदर बहुत सारे स्ट्रेटजीज हैं। 5x5 मैट्रिक्स ध्यान रखना है इसमें। तो ये थोड़ा सा जो है जो चाइल्डहुड प्रोग्राम्स हैं या हेल्थ प्रोग्राम्स रिलेटेड टू चिल्ड्रन हैं, तो उसमें ICDS की हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कशन की। सेकंड पार्ट में हमने बात करी RMNCH, जो कि RCH पार्ट 1 पार्ट 2, देन RMNCH में भी मेनली हमको नियोनेटल प्रोग्राम जो शिशु सुरक्षा योजना है, देन चाइल्डहुड प्रोग्राम जिसमें न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स हैं, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं, IMNCI है या राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है, देन एडोलसेंट प्रोग्राम्स हैं जिसमें राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम है या आर्श है। इनकी हमने बात इसमें करी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इम्यूनाइजेशन या इम्यूनाइजेशन रिलेटेड प्रोग्राम। कोई क्वेरी हो तो ज़रूर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजें या कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू ऑल।